بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے. اور اس سے پہلے کہ میں اس کا آغاز کروں 30 نمبر کوشچن کی ایکسپلینیشن کا آغاز کروں, میں ان اسٹوڈنٹ سے, ان لوگوں سے کہوں گا جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو لائک نہیں کیا, سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پہ کلک نہیں کیا, وہ لائک بھی کر لیں, سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چینل کا فائدہ ہو. Question number 13 بنتا ہے جی, what else has been planted in addition to oak trees and what did Giano find there? oak trees کے علاوہ کیا وہاں پر لگایا گیا اور گیانو کو وہاں سے کیا ملا؟ تو اس کا آنسر بنتا ہے کہ oak trees, in addition to the oak trees which spread in 11 kilometers of the landscape, there was some more vegetation also. تو اوک ٹریز کے علاوہ بھی جو کہ 11 کلومیٹر کے ایریا میں پھیلے ہوئے تھے, کچھ اور سبزہ بھی تھا. اس نے بیچ ٹریز بھی اگائے تھے اور شیفرڈ نے کچھ جو ہے برچ ٹریز ان کو بھی اگایا تھا, اور وہ بھی سلوپس پہ چند گز نیچے کر کے. اور وہ ایک آپ یہ کہہ دیں کہ موئسٹ پلیسز میں بہت اچھے انداز سے اگتے ہیں. موئسٹ ہوتا ہے نمدار جگہوں پہ, ٹھیک ہے جی. اچھا, کوشچن نمبر 14 بنتا ہے, what does mean by chain reaction? What chain reaction does Giano describe which he attributes to that man working alone? چین ریئیکشن سے گیانوں کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے جی. اور کون سا والا چین ریئیکشن گیانو بیان کرتا ہے جو وہ اکیلے کام کرنے سے, جس کو وہ اکیلے کام کرنے سے منسوب کرتا ہے. چین ریئیکشن کا مطلب ہوتا ہے تبدیلیوں کی ایک, آپ یہ کہہ دیں پوری ایک ندی, لگاتار تبدیلیاں جو کسی انقلابی اقدام سے جنم لیتی ہیں. شیفرڈز کی جو پلانٹیشن تھی اس نے پورے کے پورے لینڈسکیپ کو, پورے دہی منظر کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. 3 لوگوں کی جو بستی تھی, ہیملٹ بستی کو کہتے ہیں, اور 3 لوگوں کی جو بستی تھی اس کے اندر 28 لوگ اب ہو چکے تھے, یا 28 رہائشی اب ہو چکے تھے. they had grown, یہاں پہ دے ہوگا, انہوں نے ویجیٹیبلز اگائیں, پھول اگائے, اور بڑی آپ یہ کہہ دیں کہ لطیف قسم کی, نرم قسم کی ہوا, آہستہ آہستہ ہوا وہاں پر چل رہی تھی, اور اس ہوا کے اندر پھولوں کی, جڑی بوٹیوں کی اور پھولوں کی خوشبو تھی. 10 سے 12 نئے بنے ہوئے گھر وہاں پر موجود تھے. ٹرانسپورٹ سروس وہاں سٹارٹ ہو چکی تھی. پانی ندیوں میں بہ رہا تھا, ٹھیک ہے, بروکس ندیوں کو کہتے ہیں. اور یہ ایک اب ایسا ولیج تھا جہاں بندہ رہنا پسند کرتا ہے. اب کوشچن نمبر 15 بنتا ہے, کوشچن نمبر 15 ہے, when did Giano see the man for the last time? جانو نے آخری مرتبہ بندے کو کب دیکھا, یا بندے سے گیانو آخری دفعہ کب ملا؟ چونکہ ایک آرمی پرسن تھا گیانو, ٹھیک ہے, اور بڑا مصروف تھا 1914 کی جنگ میں, اور جون 1945 میں وہ واپس شیفرڈ کے اس گڈریے کے گاؤں میں آتا ہے تقریباً 35 سال کے گیپ کے بعد. اور گیانو نے واپس اسی راستے پر چلنا شروع کر دیا, اور جب وہ بوڑھے آدمی سے جا کے ملتا ہے, اور اس بندے کا نام جو شیفرڈ ہے اس کا نام ایلیزیڈ بوفیر ہے, اور وہ اب 87 سال کا ہو چکا تھا, 87 ایئرز کا ہو چکا تھا, لیکن وہ اسے ایک ایسی دنیا میں ملا ہے جو اس کی مسلسل پلانٹیشن, اوک اور برچز اور بیچز جیسے درختوں کی مسلسل پلانٹیشن کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہے.
ठीक है। और उसने कैनन की सरजमीन बनाई है। कैनन के दरख्त आते हैं जी जो एक बिल्कुल वेस्ट लैंड से उगते हैं, बिल्कुल एक बंजर जमीन से उगते हैं, ठीक है। इंसेसेंट होते हैं, मुसलसल कंटिन्यूसली। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 16 बनता है, व्हाट डिड ही डिस्कवर अबाउट द एरियाज ऑन हिज लास्ट विजिट 1945 आफ्टर 35 years of his first visit 1910। और उन एरियाज के बारे में, अपनी जो उसकी लास्ट विजिट थी 1945 में, उनके बारे में उसने क्या महसूस किया, क्या दरियाफ्त किया 35 साल के बाद। जब उसने 1910 में विजिट किया था इस एरिया को, तो 35 साल के बाद जब वो विजिट करता है तो उसने क्या दरियाफ्त किया। ज्ञानों ने वो खंडरात जो कि 1910 में देखे थे वो तब्दील हो चुके थे, साफ हो चुके थे। 10 से 12 नए घर बन चुके थे वहां पर, और 28 रिहायशी वहां पर मौजूद थे। और फिर उन्होंने सब्जियां उगाई थी वहां पे, 10 से 12 नए घर बनाए थे और 28 रिहायशी थे वहां पर। और फिर वेजिटेबल्स वगैरह उगाए थे वहां पर, उन्होंने सब्जियां और फल और बार्ले वगैरह और राई वगैरह जैसी फसलें उगाई थी। और लोगों ने वहां पर रहना शुरू कर दिया, वहां पे रहना शुरू कर दिया था क्योंकि जिंदगी शहरों में बड़ी महंगी पड़ती थी। सेहतमंद लोग वहां चलते फिरते हुए नजर आ रहे थे। और ज्ञानों के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो एलिजिएट बूफियर की मेहनतों और कोशिशों और काविशों के मरहून मिन्नत थे, एहसानमंद थे उसकी मेहनतों की। अब उसको बड़ी इज्जत मिली हुई थी और बड़ी तारीफ मिल रही थी, क्योंकि बूढ़ा आदमी अपनी डिवोशन, लगन की वजह से और अपनी, आप ये कह दें कि बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से, हिम्मत की वजह से उसको इज्जत मिल रही थी और तारीफ मिल रही थी, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हाउ ओल्ड वाज बूफियर when he died in 1947? जब 1947 में बूफियर जो है वो फौत हुआ तो उसकी उम्र कितनी थी? एलिजिएट बूफियर जो है वो तकरीबन 50 का था 1910 में, 50 साल का था। यही वो मौका था जब ज्ञानों से मिलता है पहली दफा, और फिर वो उसको दूसरी मर्तबा 1945 में मिलता है, 1945 में, 35 इयर्स के बाद। अब उस वक्त वो उसकी उम्र जो है 87 इयर्स हो चुकी थी, और 2 साल बाद वो 1947 में मर जाता है और उसकी उम्र 89 इयर्स हो जाती है। चुनाचे मैं ये यकीन रखता हूं कि एलिजिएट बूफियर जो है वो बिल्कुल लाफानी है और हमेशा हमेशा के लिए वो एक ऐसी दुनिया में रहेगा जो उसने खुद तख्लीक की है। अब आ जाती है इंटरप्रेटिंग में जी, इंटरप्रेटिंग वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 बनता है, व्हाट डज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ बूफियर्स अबोर्ड टेल अस अबाउट द मैन हु प्लांटेड ट्रीज? बूफियर की जो रहने की जगह है, रिहाइश की जगह है, उसका तफसीली किस्म का बयान जो है वो तफसीली तौर पर उसको बयान किया गया बूफियर की रिहाइश को। और उस बंदे के बारे में हमें उसकी रिहाइश का क्या बताती है जिसने इतने ज्यादा दरख्त उगाए थे। एलिजिएट बूफियर एक गडरिया था, तकरीबन 50 साल का था, और अपनी बीवी और बेटे की डेथ के बाद वो एक बिल्कुल तने तनहा किस्म की जिंदगी, मायूस कुन जिंदगी गुजार रहा था। उसके पास 30 भेड़ें थीं और एक कुत्ता था, और एक पत्थर के बने हुए घर में रह रहा था। और जो प्लेस थी, जो जगह थी, वो
एक तरतीब में थी, उसका जो घर था वो एक पूरी, उसके अंदर पूरी तरतीब नजर आती थी, बर्तन धोए हुए थे, डिशेस जो है वॉश थी, और फर्श पे झाड़ू लगा हुआ था, और उसकी राइफल को ऑयल लगा हुआ था। और फिर उसने ज्ञानों को सूप जो है वो पेश किया, और क्लीन शेव उसने की हुई थी, और उसका जो ड्रेस था वो अच्छे तरीके से उस पे बटन लगे हुए थे, और वो ओक्स और बीच और बिर्चेस वगैरह जैसे दरख्त लगाने का शौकीन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 बनता है जी, व्हाट डज ज्ञानो मीन बाय मेन कुड बी एज इफेक्चुअल एज गॉड इन अदर रियल्म्स, एक्सप्लेन। जब ज्ञानो ये कहता है कि इंसान जो है वो इतने ही मुतासर कौन हो सकते हैं, इतने ही आप ये कहते हैं असरअंदाज हो सकते हैं, जितना कि अल्लाह ताला दूसरे जहानों में असरअंदाज होते हैं, या ठीक है जी, तो इससे उसकी क्या मुराद है, ये जरा एक्सप्लेन करें, वजाहत करें इसकी। कहते कि अल्लाह ताला ने एक बड़ा मशहूर किस्म का ज़रबुल मिसल है कि अल्लाह ताला ने गांव बनाया, और इंसान ने फिर आगे टाउन बनाए, कस्बे बनाए, ये बड़ा मशहूर ज़रबुल मिसल है। और इसकी यहाँ पर एप्लीकेशन होती है, यहाँ ये अप्लाई होता है। बूफियर जो है वो उसने अल्लाह ताला के बनाए हुए गांव को एक आप ये कहते हैं कि सरसब्ज़ व शादाब और अच्छे बने हुए कस्बे में तब्दील कर दिया। इससे लोग जो है वो आप ये कहते हैं अट्रैक्ट हुए, इसकी तरफ खींचे चले आए, फिर उन्होंने घर बनाए, पौधे फूल उगाए, वेजिटेबल्स वगैरह सब्जियां वगैरह उगाई, और बड़ा एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट शुरू होता है। ज्ञानों का जो सेंटेंस है उसके मुताबिक एक गिफ्ट था शेफर्ड की, जो आप ये कह दें कि रजाकाराना खिदमात की वजह से बनी नौ इंसान के लिए एक गिफ्ट था। और इसका मतलब ये है कि शेफर्ड जो है वो मुसलसल प्लाटिंग वहां पे करता रहा, शजरकारी करता रहा, और बड़े हैरान कुन अंदाज से ये बड़ी मुतासर कुन साबित होती है। और अब 10,000 से ज्यादा लोग जो है वो एलिजियड बूफियर की काविशों की उन 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों की खुशी जो है वो एलिजियड बूफियर की काविशों की, मेहनतों की मरहून मेहनत है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। वाई हैड द बैरन वैली चेंज इनटू अ फर्टाइल वैली with brooks and plants and trees and flowers? Remember that Gyano could not find water there on his first visit. What could be the explanation? और ये जो बैरन वैली है, बैरन वैली से मुराद ये कि बिल्कुल बंजर किस्म की वादी है, वो एक बिल्कुल आप ये कहते हैं कि फर्टाइल किस्म की वैली में तब्दील हो जाती है, कि जिसमें सब कुछ, बहुत सारा सब्जा उग सकता है, दरख्त उग सकते हैं, पौधे उग सकते हैं, उसको फर्टाइल वैली कहते हैं, ठीक है। और उसमें नदियां भी मौजूद हैं, प्लांट्स भी मौजूद हैं, दरख्त भी मौजूद हैं, और फूल भी। तो ये कैसे तब्दील हुई इसमें फर्टाइल वैली में? उसमें फिर नदियां भी आ गई, प्लांट्स भी आ गए, एक बिल्कुल बंजर सी वैली थी, जरखेज, फर्टाइल जरखेज को कहते हैं। तो एक बिल्कुल बंजर वैली, जरखेज वैली में अपनी नदियों के साथ, पौधों के साथ, दरख्तों के साथ और फूलों के साथ कैसे तब्दील हुई। और ये भी याद रखिएगा कि ज्ञानों को वहां जब वो पहली दफा आया था तो ज्ञानों को वहां पानी नहीं मिल सका था। तो इसकी वजाहत क्या हो सकती है? ये एक चेन रिएक्शन था, मुसलसल मेहनत थी, मुसलसल रद्द अमल था।
बूफियर ने ओक्स वहां पे लगाए थे, बीचेस लगाए थे, बीच ट्रीज लगाए थे, ठीक है, और बिर्चिस के दरख्त लगाए थे। और जो दरख्त होते हैं वो गहरी जमीन से पानी खींचते हैं। पानी ने आहिस्ता आहिस्ता नदियों की शक्ल में बहना शुरू कर दिया और जानवरों ने अपनी वहां पे जगह बना ली, रिहाइश बना ली, रहना शुरू कर दिया। और जो शिकारी थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे आते चले गए। क्योंकि शहरों में रिहाइश बड़ी महंगी थी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने घर वहां पे बनाने शुरू कर दिए और वहां पे सेटल होना शुरू कर दिया, कदम जमाने शुरू कर दिए। उन्होंने फिर सब्जियां भी उगाई, फल भी उगाए, फूल भी उगाए अपने ही लॉन्स में। और ये कंटिन्यूएशन थी दरख्तों की तरफ जो बूढ़े आदमी ने उगाए थे कई सालों तक। और जो शजरकारी थी उसने सारे का सारा माहौल तब्दील करके रख दिया था। एकोस्फीयर, सारे का सारा माहौल उसने, एनवायरनमेंट तब्दील करके रख दिया था। Question number 21. Why does Giano declare the work of Bouvier as a work worth of God? Giano Bouvier के काम को अल्लाह ताला के काम से कैसे कंपेयर करता है? आप इस आंसर, क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 20 में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, सेम आंसर है दोनों क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाते हैं। विच माउंटेन एरियाज ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा वुड यू चूज टू प्लांट ट्रीज इफ यू वर अ बूफियर? अगर आप बूफियर की जगह पे होते तो खैबर पख्तूनख्वा के कौन से एरिया में आप शजरकारी या करना पसंद करते और आप कैसे इसको देखना चाहेंगे 10 साल गुजरने के बाद या 20 साल गुजरने के बाद? जरा थोड़े से इमेजिनेटिव हो जाए, थोड़े से तस्वुरात की दुनिया में चले जाए। और इसका आंसर बनता है कि आई लव टू टूर सैफुल मलूक जाना पसंद करूंगा। एक माउंटेनस लेक है, पहाड़ी, आप ये कह दें कि झील है जो कि कागान में वाक़या है। एक वादी है जिसको कागान कहते हैं और बिल्कुल नारान के करीब है। और ये तकरीबन 3224 मीटर समंदर के सतह से बुलंद है और 275 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती है और पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। कुनहार रिवर भी एक और बड़ा जबरदस्त किस्म की जगह है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में और ये 166 किलोमीटर लंबा है और बुनियादी तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के सूबा में वाक़या है जो नॉर्दर्न पंजाब में आता है, ठीक है। और ये इंडस रिवर का हिस्सा है, ठीक है, या इंडस रिवर का जो बेसिन है उसकी जो बुनियाद है उसका हिस्सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23. Write a detailed note on how man is destroying his environment. Discuss the various ways in which the environment is being destroyed. तफसील से एक नोट लिखें कि किस तरह एक इंसान जो है या इंसान अपने माहौल को तबाह कर रहा है और मुख्तलिफ अंदाज लिखें कि किस तरह माहौल जो है तबाह किया जा रहा है, किस तरह मुख्तलिफ अंदाज से माहौल को तबाह किया जा रहा है। कहता है कि हमने नेचर के बैलेंस को, कुदरत के फितरत के बैलेंस को दरख्त काट काट के बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया, अनबैलेंस कर दिया, माहौल को पूरा गंदा कर दिए, आलूदा कर दिए। हवा और पानी की जो आलूदगी है और वो इसके साथ साथ आ रही है। हम गंद पला जो है गलियों में फेंक देते हैं, कूड़ा करकट फेंक देते हैं, गार्बेज फेंक देते हैं। हम धुआं
मारने वाली गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, दरख्तों को हम काटते हैं, पानी को हम आलूदा करते हैं और हरारत हम पैदा करते हैं। स्मोक जो धुआं है वो भी हमारी वजह से होता है और इसकी वजह से ओजोन लेयर के अंदर जो हमारे ऊपर है फिजा में, अल्लाह ताला की कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हम एक ओजोन लेयर बनाई हुई है ताकि सूरज की जो शुआएं हैं, खतरनाक शुआएं, वो हम तक ना पहुंच सके। तो इस वजह से एक सुराख हो गया, पैदा हो गया इस गंदी आबो हवा की वजह से। और जो आबी जिंदगी है वो भी बड़े खतरनाक किस्म की सूरत हाल का सामना कर रही है, खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रही है, तबाहकुन सूरत हाल का, फेटल कंडीशन का सूरत हाल का सामना। उसको जमीन ही सिर्फ हमारे के रहने के लिए जगह है और हम इसको मुसलसल इग्नोर करते जा रहे हैं, रद्द करते जा रहे हैं, नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं। और अब हमें बड़ी संगीन किस्म की जो है वो परेशानी का सामना है कि टोटली एक डिजास्टर आने वाली है, मुकम्मल तौर पे हम तबाह होने वाले हैं इस माहौल तबाह करने की वजह से। अभी भी हमें ये समझने में नाकामी हो रही है कि वो नुकसान जो हम माहौल को पहुंचा रहे हैं उसको समझने में अभी भी हम नाकाम हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया बाय ज्ञानो ऑन द 3 विजिट्स। What are the significant differences that Gyano discovered and described? कहता है कंपेयर करें और फिर कंट्रास्ट करें। कंपेयर का मतलब एक जैसा होना, सिमिलर, और कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट होना। कि वो एरिया जो ज्ञानों ने देखा था और जो ज्ञानों ने डिस्क्राइब किया था अपनी 3 विजिट्स में, उस एरिया को तीनों अदवार में कंपेयर और कंट्रास्ट करें आपस में। और कौन से बड़े अहम किस्म के जो डिफरेंसेस थे ज्ञानों ने दरियाफ्त किए और किस तरह उसने उनको बयान किया। कहता है कि ज्ञानों की जो पहली विजिट थी तो उस पर जो जगह थी वो बिल्कुल आप ये कह दें कि अबेंडेंट किस्म की जगह थी, बेआबोगया किस्म की जगह थी और वहां उस जगह को सब ने उस गांव को छोड़ा हुआ था, कोई भी नहीं जाता था और घर जो थे वो एका दुका जो थे वो भी बिल्कुल खंडरात का नमूना पेश कर रहे थे। और हत्ता के 5 घंटे चलने के बाद भी उसको पानी पीने को नहीं मिलता था और ये बिल्कुल बंजर किस्म की और बेरंग किस्म की सरजमीन थी। वहां कुछ भी नहीं उगता था सिवाय जंगली एक जड़ी बूटी होती है, लेवेंडर जिसको कहते हैं, उसके। अपनी अगली विजिट में उसको पता चला कि जो दही इलाका है उसमें अभी भी तब्दीली नहीं आई थी। फिर उसने 1910 में 10 के ओक्स के दरख्त भी देखे थे, बरगद के दरख्त भी देखे थे जो अब 10 साल के हो चुके थे। 1945 में जो बूढ़ा आदमी था, बूढ़े आदमी का जो जंगल था वो 3 किलोमीटर तक फैल चुका था अपनी चौड़ाई के हवाले से। और ज्ञानो कहता है कि यूं लगता था, मुझे तो यूं लगता था कि जो रास्ता है वो मुझे एक बिल्कुल नए इलाके में ले जा रहा है या मुझे एक नए इलाके में ले गया। टेरिटरी इलाके को कहते। पानी के जो झरने थे, फवारे थे, वो उनकी बाकायदा आवाज आ रही थी। और जो आप ये कह दें कि रुइंस थे, खंडराट थे, वो उनको साफ कर दिया गया था। लोग वहां सब्जियां उगा चुके थे, आप ये कह दें कि गोभी उगा चुके थे, फल, आप ये कह दें कि फूल वगैरह उगा चुके थे, फूलों वाले पौधे। जबकि लोग इधर उधर जाते, यहाँ आते उधर आते तो वहां कुछ न कुछ उगाते चले जाते। ठीक है जी। इसके साथ ही 24 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए और फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है ग्रामर के।